چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ کے جلسے سے ورچوئل خطاب میں کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، مگر پی ڈی ایم بحالی جمہوریت کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ عمران خان ملک کے تمام اداروں کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا یہ کوشش ہے، عمران خان کا یہ کوشش ہے کہ وہ اس ملک کے ہر ادارہ کو، اس ملک کی ہر ادارہ کو عمران خان اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ ان کو یہ کرنے دیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے عمران خان کو اس ملک کے اداروں کو تباہ نہیں کرنے دیں گے، ٹائیگر فورس میں تبدیل نہیں کرنے دیں گے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ کراچی میں کیا ہوا، جس ناانصافی کے ساتھ مریم شریف اور کیپٹن صفدر کے ساتھ جو ظلم ہوا، مگر ساتھ ساتھ پوری دنیا یہ بھی دیکھا کہ عمران خان سندھ پولیس کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں سلوٹ کرتا ہوں سندھ پولیس کو جو عمران خان کا ٹائیگر فورس نہیں بنے۔ یہی کوئٹہ میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان سلیکٹڈ اور ان کے ساتھیوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے، ووٹ کو روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے۔ میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو ان کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا۔ راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ شیم شیم شیم۔ اب عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے، ووٹ عزت پانے کو ہے، اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بھارت، اسرائیل اور پی ڈی ایم ایک ہی تکون کے تین رخ ہیں۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ ملک دشمن عناصر کی تائید کر رہا ہے۔ اسی اتحاد کے ایک لیڈر اویس نورانی نے جلسے کے سٹیج سے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ سزا یافتہ مریم نواز کو سوالات پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے 4 سال سے ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ لندن کے فلیٹ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے اور وہ پیسے کیسے پاکستان سے برطانیہ بھیجے۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک لوٹنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ جو بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ بلوچستان میں جس نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، ان کو بجائے اس کے کہ وہ جھوٹ فریب کی باتیں کرتے، تو یہ ایک بڑا نادر موقع تھا ان کے لیے کہ وہ اس جلسے کو ناموس رسالت کے جلسے میں تبدیل کر لیتے، اور ان کی تقاریر صرف مذمتی تقاریر ہونی چاہیے تھیں، جو کہ ایک اتنے بڑی ہستی جو کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اس پہ بات کرتے۔ انہوں نے واجبی سا ذکر تو کیا۔ بہرحال میں یہی بات یقین سے کہتا ہوں کہ جو جلسے کے شرکاء تھے ان کے بھی وہی جذبات ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں۔ اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں، جو اب تک ہم سن چکے ہیں، مجھے تو شاید موقع ملا نہیں، لیکن جو تقاریر ہوئیں جس میں خاص طور پر ایک ایسے شخص کی تقریر جو کہ اس ملک سے عدالتیں اس کو مفرور قرار دے چکی ہیں، اس نے ایک ایسا اٹیک کیا ہمارے اداروں پر اور خاص طور پہ پاک فوج پر۔ یہ وہی پاک فوج ہے جس نے کہ پچھلے سال سے
पिछले 19 साल से जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, जिसमें हज़ारों जवान शहीद हुए हैं और जिन्होंने इस मुल्क को न तो सीरिया बनने दिया, न लीबिया बनने दिया, न इराक बनने दिया, न अफगानिस्तान बनने दिया। एक शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिसका कि सियासी सफ़र हम सब उससे वाकिफ़ हैं, आज उसने पराई सरजमीन पर हमारे फ़ौज पे हमला किया, उसके बारे में गलत बातें की। तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये क्या जाहिर करता है? जब हम कहते हैं कि इनके पीडीएमए के एजेंडे में और हमारे जो दुश्मन हैं, जिसको कि मैं ये कहूँगा कि जो एक्सिस ऑफ ईवल है, जो तिकोन है, उसका तीसरा हिस्सा हमें मिल नहीं रहा था, वो आज मिल गया। वो है इजराइल, इंडिया और पीडीएमए। और उसकी वजह भी मैं बताता हूं कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐसा शख्स जिसकी कोई सियासी या जमाती हैसियत नहीं है, शायद उसका नाम उवैस नूरानी है, उसने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया। न तो वो इस इलाके का है और न उसको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी। ये तो हमारे दुश्मन ये बात करते हैं, ये तो कोई पाकिस्तानी ये बात नहीं करता कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो। बिल्कुल हम पाकिस्तान को आज़ाद करेंगे इन चोरों उचक्कों से, इन रहनुमाओं से जो कि सियासत के भेस में इस मुल्क के वसाइल को लूटते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरे इदारों को दांव पे लगाते हैं। जब इनकी हुकूमत होती है उस वक्त हर चीज़ ठीक हो रही होती है, इदारे ठीक काम कर रहे होते हैं, और जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये फिर हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं, हर वो हथियार इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचे। मरियम बीबी जो बातें कर रही थी, उनमें इखलाकी जवाज़ क्या है इस किस्म की बातें करने का और सवालात पूछने का? सवालात के जवाब तो आपने देने हैं, आपके वाले साहब ने देने हैं। आपको तो अदालत ने कन्विक्ट किया है, आप तो जमानतों पर हैं। आप पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों से सवालात पूछ रहे हैं। आपने तो सिर्फ 2 सिंपल सवाल के जवाब देने थे पिछले 4 सालों से, जो कि आप नहीं दे रहे, और ये थी कि ये असासे कैसे बनाए और बाहर कैसे पैसे भेजे। इतने से सिंपल 2 सवाल हैं। बजाय इसका कि उसका जवाब दें, इन्होंने एक तूफान खड़ा कर दिया है। अब ये इनकलाबी बन गए हैं, नजरियाती बन गए हैं। अब इनको हर चीज़ जमहूरियत अपनी तशरीह करना चाहते हैं। अदालतों के फैसले अच्छे या बुरे उनकी तशरीह के ताबे हों। ये इस तरह हो नहीं सकता, बिकॉज आपका मुल्क इस वक्त एक ऐसे लीडर के पास है, एक ऐसे लीडर की रहनुमाई में चल रहा है जिसका बुनियादी मकसद सियासत में आने का यही था कि इस मुल्क जिसके क्या इतना पोटेंशियल है, उसको इन मफाद परस्त, करप्ट और नाअहल लोगों से, लीडरों से निजात दिलाना था। और शहबाज गिल ने मरियम नवाज को जवाब दिया कि नवाज शरीफ की बेटी होने के अलावा आपके क्रेडिट पर सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके पास बच्चों के नाम पर सियासत के सिवा बताने को कुछ नहीं है। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि मज़ार कायद की तौहीन पर पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूबायत जैसी सियासत आपको विरसे में मिली है। 3 दहाइयों से मुल्क पर मुसल्लत रहने वालों को हुकूमत के बाद अवाम याद आते हैं। बलूचिस्तान के तलबा का मसला आपके दौरे से हफ्ता पहले गवर्नर पंजाब हल कर चुके हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने तशद्दुद पर आमादा ग्रुप्स की मजम्मत करने के बजाय इस्लाम पर हमला आवर होकर इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई का रास्ता चुना। अफसोस का मकाम है कि सदर मैक्रोन ने जानबूझकर मुसलमानों को मुश्तिल करने की कोशिश की है और तौहीन आमेज खाकों की नुमाइश की हौसला अफजाई की। एक बयान में उन्होंने कहा कि सदर मैक्रोन ने दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़यादत की अलामत यह है कि वो तक़सीम के बजाय लोगों को मुत्तहिद करे, जैसा नेल्सन मंडेला ने किया। सदर मैक्रोन को दूरियां बढ़ाने और एक ख़ास ग्रोह को दीवार से लगाने के बजाय उनके ज़ख्मों पर मरहम रखना और शिद्दत पसंदों को जगह देने से इनकार करना चाहिए। दुनिया मज़ीद तक़सीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जहालत पर मबनी अवामी जज्बात मज़ीद नफ़रत उभारने, इस्लामोफोबिया में इजाफ़ा करने और शिद्दत पसंदी को हवा देने की वजह बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों ने वोट को इज्जत दो के नाम पर कोयटा में तमाशा लगाया। कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की घिनौनी साजिश हो रही है। इदारे हमारा फ़ख्र हैं, इदारों के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। एक बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाक फौज पर कौम को नाज है, इंतशार फैलाने वाले इदारों को मुतनाज़ बनाने से बाज रहे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों के साथ खड़ी है, इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब को शनाख्त दी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया, अब सूबा भी बनाएंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के बारे में बयान की सख्त मजम्मत करते हैं। जाम कमाल काबिल एहतराम वज़ीर आला है, ऐसा बयान देने वालों को शर्म आनी चाहिए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बलूचिस्तान के तलबा का मसला फौरी हल किया। एक खातून ने इस मसले पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। PDM के नाम नेहाद लीडर्स ने सूबाई हम आहंगी और भाईचारे को सबोटाइज किया। ये ना कल रहनुमा थे, ना आज हैं और ना कल होंगे। ये राहजनों का टोला है। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी पर रिहायशी इमारत के धमाके में जख्मी होने वाला एक और शख्स जान की बाजी हार गया। मस्कन चौरंगी पर वाक़ रिहायशी इमारत अलानूर में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर नदीम शेख के मुताबिक 32 साल आबिद शाह मस्कन चौरंगी पर ही वाक़ निजी अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज था, जहां वो आज जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गया। जिसके बाद धमाके में मरने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। धमाके के मजीद 5 जख्मी इस वक्त मस्कन चौरंगी पर वाक़ निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कराची में मस्कन चौरंगी पर होने वाले धमाके को गैस लीकेज करार देना दुरुस्त नहीं कहा गया है। तर्जुमान SSGC की जानिब से वाक़े के फौरी बाद SSGC की टीम ने पहुंचकर मेन लाइन बंद की। किसी भी गैस लाइन, वॉल्व और गैस मीटर की टूट फूट नहीं हुई। इमारत के मकीनों ने गैस से मुतालिक कोई शिकायत भी नहीं की। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी का ये बताना है, इमारत में वाक़ बैंक में गैस का कोई कनेक्शन नहीं है। CCTV में ताकतवर धमाका नजर आया जो उमूमन गैस लीकेज से मुमकिन नहीं। 21 अक्टूबर को होने वाले धमाके की वजह से बम डिस्पोजल स्क्वाड ने गैस लीकेज बताई थी। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी का ये कहना है। कराची के मस्कन चौरंगी पर होने वाले धमाके में अलानूर अपार्टमेंट्स का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ है। रिहायशी अफराद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया कि मुतासरा हिस्से के साथ साथ दीगर फ्लैट्स को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सनोविया चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में मस्कन चौरंगी पर वाक़े अलानूर अपार्टमेंट धमाके के रिहायशी मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका मुतालबा था कि मुतासरा हिस्से को गिराने के लिए जदीद मशीनरी और माहिरीन की मदद ली जाए। हमारा जो स्ट्रक्चर है ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है कि वो उनके हिलाने से भी नहीं हिल रहा है। हमारी सबकी ये एक रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि एक प्रोफेशनल टीम हायर की जाए, गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करे, जिसमें इंजीनियर्स हों, जिसमें आर्किटेक्ट्स हों, जो कि एक पूरा SOPs को फॉलो करें और उसके बाद इसको डिमोलिश पे बात आए, ताकि जो इर्द गिर्द के जो उसके अपार्टमेंट्स हैं वो इफेक्ट ना हो। अहले मोहल्ला का कहना था कि मस्कन चौरंगी पर होने वाला बम धमाका गैस लीकेज नहीं बल्कि तखरीबकारी का वाक़या लगता है। इतने बड़े पैमाने पर जो ये ब्लास्ट हुआ है कि वो गैस का हो सकता है, जिसकी आवाज़ मीलों तक गई है, जहाँ हमारी पूरी बिल्डिंग के पिलर्स उड़ उड़ के दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर गए। आपने कभी ऐसा गैस लीकेज देखी है? AC के आउटलेट सामने वाली बिल्डिंग पे 200 फीट क्रॉस करके लोगों के घरों पे गिरे हैं। क्या ये गैस का धमाका हो सकता है?
गैस अगर लीकेज होती तो वहाँ आग लगती, पेपर जलता। अल्लाह नूर फ्लैट्स के रहायशियों का मुतालबा था कि इनके फ्लैट्स को न सिर्फ बेहतर अंदाज में मुरम्मत करवाया जाए बल्कि निजी बैंक इंतज़ामिया को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी ने कराची का मास्टर प्लान बनाने और तमाम इख्तियारात मेयर को देने का मुतालबा कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में खुद बहरान पैदा किया है। इसका खमियाजा आम आदमी भुगत रहा है, जिस हुकूमत ने अपनी नाअहलिया को छुपाने के लिए इदारों को ढाल बना रखा है। इस मूड पर इस मुल्क में आईनी बहरान खड़ा हो गया। अब जब ये आईनी बहरान खड़ा हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म का मूड नहीं है कि वो ऑपोजिशन की जो जमातें जो असेंबली में बैठे उनसे बात करें, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि फिर मुल्क के इदारों को जो कि इस मुल्क के खैरख्वाह हैं, इस मुल्क को किसी तरह चलाना चाहते हैं, उनको मजबूरन उन पार्टी से बात करना पड़ी कि भाई वज़ीर-ए-आज़म तो बात ही नहीं कर रहा।